Welcome. Welcome to the series of lectures Physics once again. We are dealing with Newton's laws of motion. We have solved so many problems on block pulley combinations. Now, in today's class, we have a new topic that is based on constraints equations, and this video will be uploaded to my YouTube channel Grand Physics, where you can find the details and the series of all the lectures. So let's start with our topic with constraints equations. So actually, why do we need these constraint equations and what actually it does? So basically, when we are talking about the constraints equation, actually it establishes the relation between accelerations, or we can say the velocities, of different masses attached with strings. तो अभी तक क्या हो रहा था कि हम लोग सिंगल या डबल स्ट्रिंग की बात कर रहे थे. अब क्या होगा कि डिफरेंट स्ट्रिंग्स भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग्स बदल सकते हैं, और उससे जो मासेस कनेक्टेड है, जो डिफरेंट मासेस है कनेक्टेड, उसका एक्सीलरेशन या वी कैन से दैट द वेलोसिटी आल्सो, उसके बीच में क्या रिलेशन होगा. अगर दो मासेस है, तीन मासेस है, चार मासेस है, पांच मासेस है, जो कि इधर डिफरेंट स्ट्रिंग से भी कनेक्टेड हो सकते हैं, तो उसके एक्सीलरेशन या वेलोसिटी के बीच में जो एक रिलेशन होगा, उस रिलेशन को एस्टेब्लिश जो करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्स्टेंट्स इक्वेशंस. जैसे कि फॉर एग्जांपल, लेट मी रिमूव दिस थिंग्स और सी इट विथ एग्जांपल. सपोज this is the fixed surface, we can say, or fixed part, from where a pulley is connected and two blocks. Suppose one is M1 and another is M2, that is connected. And now you have to establish the relation. You have to find the relation between the acceleration of M1 and M2. तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले देखेंगे कि फिक्स्ड पार्ट इसमें क्या है और मूवेबल पार्ट क्या है. तो फिक्स्ड पार्ट जो है वो ये पुली है, यह फिक्स्ड है. और मूवेबल पार्ट की अगर बात करेंगे तो M1 है और M2 है, दो ब्लॉक है जो कि मूव करेगा. तो सबसे पहले फिक्स्ड पार्ट से इस मूवेबल पार्ट M1 और M2 का एक एनालिसिस निकालेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, और फिर उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी, और फिर अगेन डिफरेंशिएट करके एक्सीलरेशन का एक रिलेशन हम लोग एस्टेब्लिश करने का कोशिश करेंगे. तो ये अगर फिक्स्ड पार्ट है, सपोज कि ये पुली का फिक्स्ड पार्ट है, तो यहां से मूवेबल पार्ट M1 का डिस्टेंस x1 हमने लिया, और यहां से ये x2 लिया, इस मूवेबल पार्ट का डिस्टेंस. तो क्या है कि यही धागा जो है इस पुली पे रोल कर रहा है, तो इस पूरे स्ट्रिंग का लेंथ जो है वो क्या है? कांस्टेंट है. द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज ऑलवेज कांस्टेंट. सो दिस x1 द लेफ्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग एंड x2 द राइट पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, अगर इस दोनों को हम सम करेंगे
तो क्या आएगा, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेट इट L एंड इट इज कांस्टेंट. यह कांस्टेंट रहेगा या फिक्स्ड रहेगा. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, what will happen, dx1 by dt plus dx2 by dt equals to 0. So what we can write from here, v1 plus v2 equals to 0, that implies v1 equals to minus v2. So there is a relation. If the velocity of m1 is v1 and velocity of m2 is v2, then v1 and v2 are equal in magnitude, and what this negative sign says, opposite direction. What it explains? It explains about the negative sign shows here the velocities are in opposite direction. Here we can also see, suppose m2 is greater than m1, so m2 will come downward, then m1 will go upward. So there is opposite directions here. So v1 and v2 have the same magnitude of the velocity, but the direction of velocities are opposite to each other. Now again, if we are differentiating again, what we can get, d2x1 by dt square plus d2x2 by dt square equals to 0. So from there, here what we can get, this is nothing but acceleration of 1 plus this is acceleration of 2, and that will be equals to 0. Then from here what we can write, a1 equals to minus a1 equals to minus a2, and negative sign shows that the direction of acceleration of m1 and m2 are opposite to each other. Correct? So here what we can see that by writing the constraints equations, by writing the values of the displacement that block m1 or m2 can cover with respect to the fixed part, because this pulley is fixed, it is not movable. यह पुली फिक्स्ड है और मूव नहीं कर सकता है. तो यहां से हम इस डिस्टेंस को मेजर करके इस डिस्टेंस के टर्म में एक इक्वेशन लिखते हैं, क्योंकि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो कांस्टेंट है. तो ऑलवेज हम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स के लिए वैल्यूज लिखेंगे, और उस वैल्यूज को जब डिफरेंशिएट करते हैं हमको वेलोसिटी और एक्सीलरेशन मिल जाता है. इसी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन जितने भी ब्लॉक्स होंगे उस ब्लॉक्स के लिए हम निकालेंगे और उसके बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे. उसी का नाम क्या होगा, कांस्टेंट इक्वेशंस. करेक्ट? So now let's see another scenario. Either we are able to establish the relation or not. Definitely we will succeed to establish the relation. What happens? Suppose now remove this block. Now remove this block and write down the equation. Suppose another pulley is connected to it, and from here we have mass of m2, and here we have mass of m3. Now what will happen? Now you have to establish the relation of acceleration between m1, m2 and m3. So again, this pulley, there are two pulleys in these questions. So this pulley is fixed, but this pulley will come down or go up depending upon the distribution of masses, how m1, m2 and m3 are. But अगर आप देखेंगे तो अगर इस दोनों का मास ज्यादा है तो यह पुली या पूरे का पूरे सिस्टम जो है वो इस तरीके से इस डायरेक्शन में आएगा
और M1 इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा तो पुली भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। साथ में अब इसका भी एक मोशन होगा जो कि इसको अगर M3 ज्यादा है तो M3 इधर नीचे की तरफ, M2 नीचे के ज्यादा होगा तो M2 नीचे की तरफ, इस तरीके से इसका इक्वेशन बनेगा। आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। अगर ये मैग्नीट्यूड सेम आएगा, अगर आप गलत एज्यूम करके जा रहे होंगे, रॉन्गली एज्यूम कर रहे होंगे, तो उसके एक्सीलरेशन का डायरेक्शन में के लिए एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। दैट्स इट। बट उस चीज के लिए हम देखेंगे कि पुली भी क्या है, मूवेबल है। तो M1, M2, M3 यह पार्ट है। तो ये इसको यहां से M1 के लिए हम यहां से डिस्टेंस मेजर करके x1 लिए, तो M2 के लिए x2 लेंगे। यहां से M3 के लिए x3 लेंगे, और यह पुली भी मूवेबल है तो पुली के लिए x4 लेंगे। और आपको देखना पड़ेगा यहां से कि किसका कौन कौन सा स्ट्रिंग लगा हुआ है, क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ जो है वो कांस्टेंट है। तो अगर इस स्ट्रिंग की बात करेंगे तो यहां से यह स्ट्रिंग कांस्टेंट है, फिर दूसरा स्ट्रिंग यहां से स्टार्ट हो रहा है, यह स्ट्रिंग जो है यह कांस्टेंट है। तो दोनों स्ट्रिंग के लिए, दोनों स्ट्रिंग के लेंथ के लिए आप इक्वेशन लिख लीजिए तो फिर आपको सही हो जाएगा। इस केस में हम क्या लिखेंगे, एक x1 है जो दिस पार्ट, x4 है दिस पार्ट, तो x1 प्लस x4 करेंगे तो ये अपर पार्ट, फिक्स पार्ट के पुली पर जो स्ट्रिंग रोल कर रहा है उसका वैल्यू निकल जाएगा, उसके लेंथ का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहां से, x1 प्लस x4 इक्वल्स टू 0, सॉरी L। तो अगर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट 2 टाइम्स, अगर 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, A1 प्लस A4 इक्वल्स टू 0 एंड दैट विल बी इक्वेशन नंबर 1। इस पार्ट के लिए हमने लिख लिया। अगर M2 के लिए ये पार्ट लिखेंगे, दिस पार्ट के लिए, इफ वी आर ट्राइंग टू राइट फॉर दिस पार्ट, तो क्या लिखेंगे इक्वेशन, इस पार्ट का वैल्यू कितना होगा, x2 जो टोटल लेंथ है उसमें से x4 को माइनस कर देंगे तो ये वाली पार्ट निकल जाएगी। यह पार्ट होगा x2 माइनस x4, दिस पार्ट। तो क्या होगा, x2 माइनस x4 लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट हो गया। अगर राइट हैंड साइड की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, x3 पूरे का पूरा लेंथ यहां तक, उसमें से x4 को माइनस करेंगे, देन व्हाट वी हैव, x3 माइनस x4 इक्वल्स टू L। अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, A2 माइनस A4 प्लस A3 माइनस A4 इक्वल्स टू 0। तो नाउ व्हाट वी कैन राइट, A2 प्लस A3 माइनस 2A4 equals to 0. Sorry. This will be equation number 2. And now you have A4 equal to minus A1. So you can put from there A4 equal to minus A1. So that will be from 1. From equation 1 and 2. What we will have, A2 plus A3 minus plus 2A1 equals to 0. Let this is equation number 3. So we have established the relation A1, A2 and A3. What is the value? 2A1 plus A2 plus A3 equals to 0. Further, you can also write the equation for this part, but अल्टीमेटली हम लोगों को क्या करना है कि M1, M2 और M3 के बीच का रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो 2A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल्स टू 0 विल बी द रिलेशन। सो इस तरीके से हम लोग रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर इसमें एक और पुली को कंबाइन कर दिया जाए, अगर एक और पुली की बात करूं तो वहां से भी हम लोग वैल्यू को निकाल सकते हैं। किस तरीके से, आइए देखते हैं। नाउ वी आर रिमूविंग now remove this part.
What is this? Put a pulley here and attach the mass M3 and here M4. Now remove these all. इसके लिए हमको इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे? अब M1, M2, M3, M4 कुछ इस तरीके से मासेस हैं और इसके साथ यह पुली, दिस पुली विल रिमेन फिक्स्ड बट दिस पुली एंड दिस पुली कीप्स मूविंग। सो M1 के लिए यहां से इक्वेशन लिखेंगे, M2 के लिए क्या लिखेंगे? X2 यहां से यहां तक, M3 है यहां से X3, M4 है यहां से X4। यह चारों ब्लॉक के लिए हमने लिखा। अब क्या करेंगे? इसके लिए 5 नंबर मान लीजिए और इसको 6 नंबर मान लीजिए। तो यहां से क्या लिखेंगे इक्वेशन? X5। और इसके लिए क्या लिखेंगे इक्वेशन? सॉरी X6। इस तरीके से हम लिख करके सारे लेंथ के लिए 1, 2 एंड 3 इक्वेशंस को लिखेंगे और उसके लिए इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा। जिसे पहला M1 के लिए क्या हो जाएगा? M1 की यदि बात करूं तो यहां से यह लेंथ फिक्स्ड होगा तो X1 प्लस X5 इक्वल्स टू L। तो यहां से क्या आ जाएगा? A1 प्लस A5 इक्वल्स टू 0। ये पहला इक्वेशन बन जाएगा। अगर M2 के लिए लिखना चाहेंगे तो क्या होगा? M2 के लिए अगर लिखना चाहेंगे तो X2 पूरा लेंथ है, उसमें से X5 को माइनस कर देंगे तो ये पार्ट निकल जाएगा। तो X2 माइनस X5 प्लस, अगर राइट हैंड साइड की बात करेंगे तो इस पुली का लेंथ कितना लिया है? X6 में से X5 को माइनस कर देंगे, X6 माइनस X5 देन इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा? A2 प्लस A6 माइनस 2A5 इक्वल्स टू 0। यह इक्वेशन नंबर 2। फिर इसी तरीके से इस दो के लिए अगर इसके लिए वैल्यू लिखेंगे क्या लिखेंगे? यहां से यहां तक पूरा कितना है? X3 और यह लेंथ कितना है? X6। तो क्या आ जाएगा? X3 माइनस X6 प्लस इस पार्ट के लिए लिखेंगे तो X4 माइनस X6, X4 माइनस X6 इक्वल्स टू L। यहां भी L होगा। तो अब यहां से क्या आ जाएगा? A3 प्लस A4 माइनस 2A6 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा। करेक्ट। तो M1 के लिए लिखा, M2 के लिए लिखा, M3 के लिए लिखा, M4 के लिए लिखेंगे तो कितना होगा? M4 के लिए यह पूरा का पूरा लेंथ कितना है? X4। यहां से यह पार्ट फिक्स होगा, इसमें से X6 को अगर माइनस कर दें, X4 माइनस X6 करेंगे और 3 के लिए कहां लिखे थे? X3 में से X6 को माइनस कर देंगे तो X3 माइनस X6, तो ये पार्ट निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? X3 माइनस X6 प्लस दिस पार्ट को निकालेंगे तो क्या होगा? X4 माइनस S6, X4 माइनस X6 इक्वल्स टू L। तो फिर इस तरीके से आपको इक्वेशन मिलेगा A3 प्लस A4 माइनस 2A6 इक्वल्स टू